Good morning, Assalamualaikum. Assalamualaikum, how are you all? Good morning, my dear students. कैसे हैं आप? All are sleepy? सब लोग सो रहे हैं? Yes, my dear students. Today I will deliver lecture. I will tell you. We will revise today about our first term syllabus. Today we will revise our SST syllabus. Review of lesson number 1 to 5. It's my lecture for class 3, and it's all about the revision of first term. As we have completed our 5 lessons, now we will revise. आज हम revise करेंगे. First of all, let me show you books, all of you. All of you, let me show you books. Yes, students. Without books, beta, it is useless to attend a lecture. It's not beneficial for you. Yes, my dear students, take out your books and let me show you books. Have you done your homework on your notebooks as well? अपनी notebooks से आपने homework done किया था? No response? ये active part, students. Okay, my dear students. अपनी notebooks पे अपनी notes की हेल्प से आप complete करिए अपनी notebooks को. Because your midterms are going to start. आपके midterm start होने जा रहे हैं, so that you have to prepare for your exam. Okay? Now today we will revise our topics. Lesson number 1 about the earth and space. Lesson number 2 about the maps. Then climate, our country, and citizenship. In lesson number 1, what we have learned? We have learned about the earth, the solar, planets, atmosphere, space, and what causes day and night. हमने lesson number 1 में हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा? हमने space के बारे में, planets के बारे में, solar system के बारे में, land and water के बारे में, अर्थ, मून, सैटेलाइट, सन, इन सब चीजों के बारे में हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. एंड डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, पाकिस्तान के लैंड फॉर्म कौन कौन से उसके बारे में भी हमने पढ़ा. पाकिस्तान के बारे में हमने पढ़ा, पाकिस्तान अपनी कंट्रीज के बारे में पढ़ा हमने. वी हैव टोल्ड यू अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. सीज एंड ओशंस मेक अप ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस. सीज और ओशन के बारे में बताया. व्हाट इज कोस्ट, सी लेवल. यस, यस माय डियर स्टूडेंट्स. वी हैव लर्नड अबाउट द सोलर सिस्टम. अर्थ, सन एंड मून ऑल आर द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. Yes, ma'am. And then earth is a planet. Moon is a satellite. Know its own light. Its light is a reflection of sun. And what causes day and night? The movement, the spinning movement of earth causes day and night. Okay, my dear students. I have told you about the island and lake. An area of land surrounded by the water. Land एक लैंड का एरिया जिसके इर्द गिर्द वाटर, उसे हम आइलैंड बोलते हैं. ओके, एंड अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय द लैंड और आउटसाइड इज कॉल्ड लेक. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्पेस, अबाउट द प्लैनेट्स, स्टार्स, अर्थ एंड द प्लेसेस, अबाउट डे, नाइट, अर्थ, मून, सॉलिड, रिफ्लेक्शन, सैटेलाइट. In this lesson, we have learned about many things about Earth and space.
In the next lesson, lesson number 2, maps show us the direction, tell us the direction. Maps are used to show the surface of earth. A map shows the shape of the land or a sea. मैप के बारे में डिस्कस किया। मैप हमें क्या बताते हैं, किसी भी चीज की डायरेक्शन को बताते हैं, हमें उसके साइज के बारे में बताते हैं, हमें सीज और अर्थ के लैंड के साइज के बारे में बताते हैं कि उसकी साइज क्या और शेप क्या है। एंड मैप ऑल्सो शोज वेयर प्लेसेस एंड लैंडफॉर्म्स आर लोकेटेड, और मैप हमें ये भी बताता है कि ये प्लेस कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन में है। ओके, तो मैप की वजह से हमें पता लगता है कि हम हमारे डिजायर जो भी हम प्लेस सर्च कर रहे हैं वो कहाँ है। ओके, उसके बाद हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, शेप बताता है किसी चीज की, उसकी कीज एक्सप्लेन करती हैं। सिंबल और साइंस आर कॉल्ड कीज। सिंबल और साइंस से हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि ये प्लेस कहाँ है। ओके, एंड आल्सो टोल्ड यू अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, अबाउट द 7 large lands shown on the world map. These are the continents. I have told you about the continents. There are 7 continents. The name: Europe, Asia, Africa, Antarctica, North America, South America, and Oceania. The oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, and Southern Ocean. I have told you about the oceans and continents in this chapter, and you have to learn the name of continents and oceans as well. In this lesson, we have learned about the landforms, different landforms, keys, atlas, and continent and oceans. Continent and oceans. Next lesson is about climate or seasons, weather, temperature, and its measuring tools. इस लेसन में हमने सीजन्स के बारे में पढ़ा। सीजन्स क्या होते हैं, क्लाइमेट क्या होते हैं, वो एक यूजुअल वेदर होते हैं ऑफ अ ईयर ऑफ अ प्लेस थ्रू आउट द ईयर। जो भी एक किसी प्लेस का जो वेदर पूरे साल के लिए रखता है वो उसकी क्लाइमेट होती है। देन सीजन्स, वी हैव 4 seasons: spring, autumn, winter, and summer. The temperature and temperature measuring tools. I have told you about the 2 tools. The measuring tools, through we measure the temperature of places. हम किसी भी चीज की प्लेस की टेम्परेचर को मेजर किससे करते हैं, थर्मामीटर से करते हैं। किसी भी चीज के रेन को मेजर करना हो तो रेन गेज से करते हैं। अगर विंड की स्पीड के बारे में मालूम करना हो तो किससे करते हैं, विंड की डायरेक्शन की मालूम करना हो तो कौन सा टूल यूज करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी यूज वेदर वेन टू टेल अस द डायरेक्शन ऑफ अ विंड। वेदर वेन हम यूज करते हैं विंड की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए कि विंड की डायरेक्शन किस साइड पे है। एंड we use weather vane to tell us direction, and wind speed is measured by the anemometer, and barometer is used to measure the air pressure. Air pressure measure करने के लिए हम barometer यूज करते हैं। और अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो विंड की स्पीड को, जो सनशाइन की अमाउंट को मेजर करते हैं, जो वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कितने उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ये सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको यूज करते हुए हमें पता लगता है कि ये रेनफॉल कितने हैं, रेनी डेज कितने हैं, रेनफॉल कितनी है, और टेम्परेचर कितना है, विंड की स्पीड क्या है, विंड की डायरेक्शन क्या है, विंड का प्रेशर क्या है। ये सारी चीजें हम किस चीज से मेजर करते हैं, मेजरिंग टूल्स से, डिफरेंट टूल्स से हम इनको मेजर करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ दीज मेजरिंग टूल्स एंड देयर फंक्शंस एज वेल। We have learned about the climate, temperature, lightning, rainfall, and seasons in this chapter, chapter number 3, climate. And the next chapter is about the country. About country. Yes, my dear students, country. ये लेसन हमारे कंट्रीज के बारे में, जैसे कि अर्थ, द लैंड ऑन द अर्थ डिवाइडेड इनटू कंट्रीज। जो भी लैंड है हमारी वो कंट्रीज में डिवाइड है। अर्थ को हमने डिवाइड किया है किस चीज में, कंट्रीज में। Like we live in Pakistan. Pakistan is a country. I have told you about the population of Pakistan. Pakistan की population क्या है, climate क्या होता है, पाकिस्तान के provinces कितने हैं, provinces how many provinces, and capital कौन सा है, पाकिस्तान का capital कौन सा है, पाकिस्तान के provinces की capital कौन सा है। I have told you about this. What is in the north of Pakistan. I have told you about the south. What is in the south of Pakistan.
capital of Islam, capital of the provinces and Pakistan as well. And also I have told one thing in this chapter that Pakistan has a fertile land. Pakistan is an agriculture country. पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और हमारी लैंड बहुत फर्टाइल है जिससे हमारी क्रॉप्स बहुत अच्छी होती है. एंड आवर कंट्री डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर. द नेक्स्ट इज आवर नेशनल आइडेंटिटी. और नेशनल आइडेंटिटी हमारी कौमी पहचान क्या है? आई हैव टोल्ड यू द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज रशिया एंड स्मॉलेस्ट स्टेट चाइना हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. चाइना की दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? चाइना में है. 1.3 billion people. And Pakistan, we live in Pakistan, that's why we are Pakistani citizens. Our national identity is we are Pakistani. We are Pakistani citizens. We have our own national anthem. हमारा अपना national anthem होता है और जब national anthem होता है we stand up straight and sing it with a great pride. जब हम national anthem होता है तो हम खड़े होते हैं और उसको बड़े pride से हम sing करते हैं. हमारी स्टेट रिलीजन क्या है? इस्लाम है हमारा स्टेट रिलीजन, डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज. हमारी हमारा ड्रेस चेंज होता है. हमारी नेशनल ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो कुछ चीजें कॉमन होती है जो हम सब पाकिस्तानी से कॉमन होती है. और हिस्ट्री, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. तो ये सारी कुछ चीजें हमारी लैंग्वेज जो हम सबकी, हमारी करेंसी जो हम यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें सेम होती है. ओके. Then our national game is hockey, our national language is Urdu, and our rupee currency is rupee. We use the same currency. Okay, now you have to learn the cities name of Pakistan. पाकिस्तान के names, पाकिस्तान के cities के names learn करने हैं आपको. Then we have learned about the Earth is one of the 8 planets in the solar system. Moon is a light of the earth. The sun's light is reflect of it. Moon की अपनी लाइट नहीं होती, सन की लाइट से वो रिफ्लेक्ट करता है. The weather change from day to day. Weather day to day change होता है. Climate is the usual weather of a place and the during year. And Pakistan is on the continent called Asia. पाकिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया में. And it has many different landforms. It is our country. Yes, my dear students. I have sum up the 4 lesson number 1, 2, 3, 4, and now I will. Walaikum Assalam. And now I will tell you about the lesson number 5, citizenship. Recently we have learned about the citizenship. अभी हमने लास्ट लेक्चर में citizenship के बारे में डिस्कस किया. तो उसमें मैंने आपको क्या बताया कि हमारा घर किसी एक स्ट्रीट में है. Thank you so much. Okay, my dear students. In this chapter, thank you. Okay, I have told you about the citizenship. Citizenship क्या होती है, my dear students? हम जहाँ रहते हैं, तो कुछ लोग हमारे घर के साथ रहते हैं. They are called our neighbors. People who live near our house, वो हमारे neighbors होते हैं. तो जो लोग एक प्लेस पे इकट्ठे रह रहे हैं, तो वो कम्युनिटी होती है. तो मैंने आपको कम्युनिटी के बारे में बताया. कम्युनिटी, ऑल द पीपल लिविंग इन वन प्लेस फॉर्म अ कम्युनिटी. तो वो सारे लोग एक जगह पे जब रहते हैं तो वो एक कम्युनिटी बनाते हैं. तो कम्युनिटी कैन बी विलेज, कैन बी सिटी, टाउन, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, सिटी की, टाउन की, विलेज की. एंड द पीपल ऑफ कंट्री आर इट्स सिटीजन्स. हम पाकिस्तान में रहते हैं, दैट्स व्हाई वी आर पाकिस्तानी सिटीजन्स. And I have told you one thing more about the sharing is caring. We share many things with each other. हम बहुत सी चीजें जिसका शेयर करते हैं. जिस स्ट्रीट में आपका घर है वो स्ट्रीट तो आपकी नहीं है, बट हाउस तो आपका अपना है. वो स्ट्रीट आप सबके साथ शेयर करते हो. आप बहुत सी चीजें सबके साथ शेयर करते हैं. जब आपको एक सोसाइटी में रहना होता है तो आप शेयरिंग करते हैं. सब लोग मिलकर एक चीज को यूज करते हैं. Sharing these things means that we must also share the responsibilities for them. Citizenship involves people acting together to address issues and improve society. Citizenship क्या होती है कि इसमें हमारे एरिया की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हम सब लोग मिलकर बैठते हैं, एड्रेस करते हैं उस चीज पे और उस प्रॉब्लम को हम हल करते हैं.
और जिससे हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव किया जा सके। हम बहुत सी चीजें हम शेयर करते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, म्यूजियम, रोड्स, कॉलेजेस, पार्क, शॉप्स, पोस्ट ऑफिस, ये पब्लिक प्लेसेस है। तो पब्लिक प्लेसेस हम सब लोग वहां जाते हैं और सब लोग हम उसको यूज करते हैं। वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं होती, वो सबके लिए होती है। ओके, कुछ सर्विसेज होती है प्राइवेट और कुछ होती है पब्लिक। तो जो प्राइवेट होती है वो किसी एक पर्सन से बिलोंग कर रही होती है, वो किसी एक पर्सन ने बनाई होती है, उसकी अपनी वो ऑनरशिप में होती है। जैसे प्राइवेट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक तो होते हैं वो सबके लिए होते हैं, पब्लिक मीन्स दे आर फॉर एवरीवन, एंड द प्राइवेट मीन्स बिलोंग टू समवन। प्राइवेट मतलब किसी एक पर्सन से वो बिलोंग कर रही हो, वहां हर कोई नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो वो अपने उस चीज के लिए मीन्स पे करना पड़ेगा उसको। अब ऐसे है माय डियर स्टूडेंट्स की हम स्ट्रीट क्लीनर्स को पे करते हैं। हमारे घर अगर टेलीफोन लाइन खराब हो जाए, हमारी कोई ओवन खराब हो जाए, तो हम किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और उसको जब हमारा वर्क करता है, हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, हम उसे ऑन द स्पॉट पे कर देते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम पे नहीं करते। मीन्स खुदा ना खास्ता अगर अब आगे लग जाए तो हम फायर फाइटर को बुलाते हैं, तो हम उसको पे नहीं करते। पुलिस हमारे हमें प्रोटेक्ट करती है बट हम उसे पे नहीं करते, बिकॉज गवर्नमेंट पे कर रही है उन्हें। तो गवर्नमेंट कहाँ से पे करेगी? गवर्नमेंट हमारे टैक्स से पे करेंगे, जो टैक्स हम उन्हें पे करते हैं। जो हम टैक्स से इनकम टैक्स पे करते हैं, हम रोड टैक्स पे करते हैं। तो टैक्सेस के जरिए जो है वो मनी कलेक्ट की जाती है, गवर्नमेंट भी वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट हमें भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट हमारे लिए रूल्स बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, दैट वी हैव टू फॉलो देम। हमें उनको फॉलो करना है एक अच्छी सोसाइटी में रहने के लिए। सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स होते हैं, इनको फॉलो करना होते हैं। तो वो गवर्नमेंट हमारे लिए रूल्स चूज करती है, हमारे लिए चूज, और हर गवर्नमेंट को हम चूज करते हैं बाय वोटिंग। हम खुद वोट कास्ट करके उनको हम सिलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को, जो हमारे लिए क्या बनाती है? रूल्स बनाती है, और हमारे टैक्स को भी यूज करती है, और वो हम पे ही यूज करती है, हमको हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कुछ सर्विसेज फ्री होती हैं और कुछ फ्री नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि हम वर्किंग ऑन अ स्ट्रीट इज फ्री। हम गली में चल रहे हैं तो वो फ्री है, हम स्ट्रीट में चल रहे हैं तो वो फ्री है। स्टडिंग इन स्कूल नॉट फ्री, स्कूल में पढ़ना तो फ्री नहीं है। ड्राइंग क्लॉथ्स इन द सन, ड्राइंग क्लॉथ्स इन द सन इज फ्री। Yes, my dear students. Now, any confusion regarding these lessons, lesson number 1 to 5. अगर कोई क्वेश्चन आपको है, कोई कंफ्यूजन है, then you can ask, my dear students. Yes. No. No. Is it clear? Yes, ma'am. अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है अपने मिड टर्म एग्जाम्स के लिए आपने. Okay. And now. Okay, thank you, beta. Now I will assign you your homework. You have to learn, write, work pages, question answers on your notebook and book from year number 1 to 5. If you have done, then very good. अगर आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, very good. अगर आपने नहीं किया तो kindly आप अपने notes, very good बेटा. If you have done, then very good. अगर आप कर चुके तो आप उसको रिवीजन करें, आप उसको लर्न करें, लर्न करके आप उसकी सेल्फ प्रोसेस करें, अपने आप को, अपने खुद क्वेश्चन राइट करें, उसको लर्न करें और उसको चेक भी करें. ओके. और अगर नहीं किया तो काइंडली आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लें, बिकॉज आपके नोट्स चेक किए जाएंगे. ओके. ओके मैम. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.